I'm Yash Kale. I've been selected in Indian Forest Services at AIR 2, AIR 22 in this year, 2022. My optionals in forestry were forestry and geology, and my optionals in civil services were political science. I'll tell a little bit about my journey thus far, so that there is a lot of context that all of you have. I am from Nashik, Maharashtra. I'm born in 1995. My schooling has been done in Pune and Nashik. After that, I took admission in VIT Pune, one of the premier engineering colleges of Pune, for BTech in mechanical. Having completed my BTech in 2017, I took up a job in ZS Associates that I did for a year. After that, I decided to pursue UPSC and I came to Delhi. Uh, this was my fourth attempt in which I got success in the Indian Forest Services. I am also in parallel have given the attempt for IAS. I'm trying for a service upgrade, so I'll also be hopefully be appearing for an interview this year. So this is about myself. Tell a little other background. I am in my college. I also used to take part in public speaking, and I was the university representative of my college. And I love reading. That is a large part of what propelled me towards this career path. And being, I am also a son of a civil services civil servant, and that has played a large part in why I decided to take this career path, and also guided me quite a lot in how I chose what I did, in terms of optional, in terms of persistence throughout attempts wherein I did not gain success, and so on and so forth. Enough about myself. Now we will, the format of how we will go on today is that first we will take up a couple of questions that are commonly asked by aspirants, and then, as I can see, there are a lot of questions in the chat box that we will be taking ahead. You can continue to keep ask questions, so that I'll have a ready compendium of what to answer for you guys. And I'll just do a quick sound check again. Uh, yes, हिंदी में भी बोलेंगे जी, sorry. I'll try and mix हिंदी and English ताकि सबको काफी अच्छे से समझ पाए. जी. I'll just go through the एक बार questions देख लेता हूँ. कोई बड़ा कोई question अगर होगा जिसे शुरुआत में ही address करना हो तो. हाँ जी, मैं मेरे कोचिंग के बारे में बताना भूल गया। मैंने 2018 में वाजीराम एंड रवि से मेरी जीएस की कोचिंग ली थी। सीसेट के लिए मैंने कोई कोचिंग ली नहीं थी, और उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ कोचिंग ली थी। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने कहीं पे कोई दूसरा मेजर पेड कोर्स लिया नहीं था। उसके बाद जितना भी स्टडी था वो सेल्फ स्टडी था, दिल्ली से ही किया था, ओल्ड राजेंद्र नगर से। एंड उसके बाद लार्जली सेल्फ स्टडी था। पैंडेमिक ईयर्स में घर पर थे, सो उस समय वहाँ था। एंड रिगार्डिंग माय सक्सेस, सो इन द अटेम्प्ट सो फार, I've been managed to clear all pre that I have attempted. I've attempted four prelims from 2019 onward, 19, 20, 21, and 22. I've managed to clear all of them with UPS with forest cutoff. Forest का भी cutoff हम निकाल पाए हैं. आई एम सॉरी. तो फॉरेस्ट का भी कट ऑफ हर बार निकला है, बीन लकी उस बारे में. और या आई थिंक मेरे बारे में मैंने, जहां तक मुझे लगता है कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बता दी है. और मैं देख रहा हूँ आपके क्वेश्चंस है काफी, वो एक एक करके मैं आपके एड्रेस करूंगा. पहले जो एक सेट क्वेश्चंस है उसको मैं एड्रेस करता हूँ. हो सकता है आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है वो उसी में एड्रेस हो जाए. सीसैट का बस मैं देख रहा हूँ किसी ने काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं सीसैट के बारे में. सीसैट के लिए मैंने एक्चुअली इससे पहले मैंने कैट एग्जाम जो एमबीए के लिए एंट्रेंस है वो दी थी. तो इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली सीसैट के लिए, क्योंकि कैट की तैयारी की थी, तो मैंने सीसैट के लिए कोई खास अलग तैयारी करी नहीं थी. बस मैंने हर हर प्रीलिम्स के अटेम्प्ट के पहले दो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अटेम्प्ट करता था, जस्ट टू चेक कि मैं टच में हूँ या नहीं. और क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि मैं
मेरे स्कोर रिलेटिवली डिसेंट है, तो मैं फिर और ज़्यादा ये करता है। जी, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। परिचय और यूपीएससी जर्नी हो चुका है। जी, यस वी कैन बिगिन विथ बुक लिस्ट्स एक्चुअली। क्योंकि सोर्सेज जो है सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सोर्सेज काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं कि जैसे हमारा जो इंटरेस्ट और जो स्पीड है, वो कैसा रहता है। सो मैंने काफ़ी बेसिक सोर्सेज ही फॉलो किए हैं, कोई जो लगभग सारे टॉपर्स बना रिकमेंड करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ किया है। एंशिएंट मिडीवल के लिए मैंने वाजीरामन रवि की येलो बुक करी है। बट यू कैन आल्सो पैरेलल में डू एनसीईआरटीज़ प्लस तमिलनाडु। उसी के साथ आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया कर सकते हैं, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ प्लस जीसी लिया हूँ। इसी के पैरेलल में मैंने अगले अटेम्प्ट्स में पीएमएफ आईएएस की किताब करी थी। देन इकोनॉमी के लिए मैंने श्रीराम आईएएस के नोट्स रेफर करे थे। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस के नोट्स रेफर करे थे। आईआर और साइंस एंड टेक ये मैंने काफ़ी, और सिक्योरिटी मैंने काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स से ही किया था। करंट अफेयर जो है मैंने अ, ज़्यादा हद तक विजन के करंट अफेयर्स ही फॉलो किए हैं, जो उसके पी मंथलीज़ और पीटी 365 और मेंस 365 आते हैं। ये सोर्सेज़ मैंने लार्जली रखे हैं, एंड आई हैव ऑलवेज़ फाउंड देम क्वाइट डिसेंट। आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज़ हैं, काफ़ी अलग-अलग तरह के, अलग-अलग फॉर्मेट्स के हैं। मगर एक बेसिक कोई भी आप जो सोर्स पकड़ना चाहें, वो जो आपको कंफर्टेबल हो, और मेरे सजेशन के हिसाब से जो काफ़ी हद तक दूसरे लोग भी फॉलो करें, वो आप कीजिए। चाहे वो विज़न हो या किताबों में भी, सब्जेक्ट्स में भी कोई दूसरा जो आप बना सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टेस्ट सीरीज़, राइट। सो टेस्ट सीरीज़ के बारे में, टेस्ट सीरीज़ जो है इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि आप पढ़ते हैं, आप एक असम्पशन में रहते हैं कि आपको कोई चीज़ पता है या नहीं पता है। यू आर नॉट एंटायरली श्योर, यू आर नॉट टेस्टेड वेदर यू नो व्हाट यू आर रीडिंग और नॉट, क्योंकि ये यू मे बी आप ही के अंडरस्टैंडिंग के से लिमिटेड हो। तो इसीलिए आपने रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने चाहिए। उससे आप ना ना केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि आपको कितना पता है, ये आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे, उसको भी काफ़ी एनहांस करता है, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन में गैप्स को हाइलाइट करता है। और जैसे ही गैप्स हाइलाइट होते हैं, यू कैन देन टेक मेजर्स टू करेक्ट इट। मैं प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली पहले बोलूँगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने 35 टू 50 टेस्ट्स, ये मिनिमम रिकमेंडेड होते हैं। 35 इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम बीइंग 50। अ, अलग-अलग क्लासेस के अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 35 टेस्ट्स फ्रॉम 1 क्लासेस जनरली वो एक ये रहता है पीरियड। और दूसरे जो आगे के टेस्ट हैं, आप चाहे तो कोई भी एक दूसरे क्लास के जो एक फास्ट सीरीज़ होती है, जैसे 3 की विज़न की आती है, 10 सिमुलेटर्स फोरम के आते हैं, या फिर शून्य के आते हैं। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, और साथ ही में 2-3 ओपन टेस्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो काफ़ी आजकल प्रेवलेंट है। तो ये करके आप टेस्ट सीरीज को बिल्कुल आपने काफ़ी सीरियसनेस से पूरे यूपीएससी एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करके करना चाहिए। का जहाँ तक हो सके आप 100 के 100 क्वेश्चंस एक ही साथ अटेम्प्ट करें। बिल्कुल बीच में मत उठिए। डू नॉट लुक एट द क्वेश्चंस बिफोरहैंड, बिफोर यू सॉल्व द टेस्ट। फ़ोन्स एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, और जितना हो सके आस-पास अगर स्टूडेंट्स हो, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जैसे लाइब्रेरी में दे रहे हैं, ओपन टेस्ट में दे रहे हैं। बट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आप घर पे जितना रिक्रिएट कर सकते हैं वो डन है। ये हो गए टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला एक बहुत बड़ा जो टॉपिक होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो 2013 के ऑनवर्ड्स पूछे गए हैं। क्योंकि कई बार यूपीएससी हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनिटली रिपीट करता है, और काफ़ी अलग जो आगे के क्वेश्चन हैं उसमें थीम रिपीट होती है। भले ही एग्ज़ैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन सेम ना भी हो, तो फिर भी जो थीम है क्वेश्चंस की, वो काफ़ी हद तक रिपीट होती है। तो इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव कि आप हमेशा पढ़ते समय
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में रखें, उसको मद्देनज़र रखें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जो पढ़ रहे हैं, उसका उसके जो फ़ोकस है, यूपीएससी जो माँगता है, वो किस चीज़ पर है? जैसे आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे पॉलिटी में, जो फंडामेंटल राइट्स, प्रिएम्बल ये जो चैप्टर्स है, पार्लियामेंट, इसको बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज है, बाकी लक्ष्मीकांत या बाकी पॉलिटी के सिलेबस के कंपैरिज़न में। तो जब आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम these chapters. Then you'll realize that perhaps your reading from these chapters should be far more focused on these. ये आपको ये भी बताता है कि डेप्थ और डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस कितनी होती है। So naturally, previous year questions are very important. Similarly for मेंस as well. आप देखेंगे कई सारे जो पेपर क्वेश्चंस हैं, हर साल हर मेंस में 1 से 4 क्वेश्चंस बीच में आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे। एथिक्स और ऑप्शनल में पर्टिकुलरली ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप शायद 7 टू 8 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल में डिपेंडिंग ऑन ऑप्शनल और एथिक्स में आपको डेफिनिटली मिलेंगे जो सीधे-सीधे वर्बेटिम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। अ, आगे चलते हैं टेस्ट सीरीज एनसीईआरटीज़ पे। एनसीईआरटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? एनसीईआरटीज़ एक्चुअली एक आपका बेस बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका बेस जो है ये एनसीईआरटीज़ इज़ अ वेरी लूसिड और ईज़ी लैंग्वेज। तो आपको वो काफ़ी हद तक बेस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज है तो आप कांसेप्ट्स काफ़ी ईज़िली ग्रास्प कर सकते हैं। आपको बड़े-बड़े इकोनॉमिक्स के कांसेप्ट्स हो गए, पॉलिटी के कांसेप्ट्स हो गए, एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाने के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो कई बार मैं ऐसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शुरुआत में आपके प्रिपरेशन के एनसीईआरटी से करते हैं, अगर समय हो तो आप काफ़ी वेल प्लेस्ड रहेंगे। अ, काफ़ी हद तक पूछा ज कई लोग होते हैं जो 6वीं से एनसीईआरटीज़ पढ़ना प्रेफ़र करते हैं। इतना समय मिलना मुश्किल है एक नॉर्मल एस्पायरेंट को। तो मेरा तब सजेशन रहता है कि आप 11वीं और 12वीं के ही स्टिक कीजिए। उसमें भी कोई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, जहाँ पे एनसीईआरटीज़ का महत्व जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फिर हिस्ट्री इज़ आल्सो क्वाइट गुड स्पेशली फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल। बाकी सारे एनसीईआरटीज़ अब अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी हद तक आपको फ़ायदे में रहेंगे, ज्योग्राफी तो है ही। एनसीईआरटीज़ ऑल्दो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप एक्सेप्ट फॉर ज्योग्राफी आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटीज़ के साथ में एक और सोर्स लगेगा। चाहे वो बेसिक सोर्स हो या एडवांस सोर्स हो, ये आप चूज़ कर सकते हैं। बट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटीज़ इज़ जस्ट द फाउंडेशन। ओनली द फाउंडेशन कैन नॉट हेल्प यू गेट ग्रेट मार्क्स। अगला टॉपिक आता है न्यूज़पेपर्स का। तो न्यूज़पेपर्स इज़ अ वेरी हॉटली डिबेटेड टॉपिक इन यूपीएससी। देयर आर सर्टेन टॉपर जो रिकमेंड करते हैं कि आपको ज़रूरी है कि आप हर रोज़ ये न्यूज़पेपर पढ़ें। कुछ टॉपर्स होते हैं जो बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी कहते हैं कि एंड क्वाइट राइटफुली सो, जो उन्होंने पूरा प्रोसेस निकाला है। तो न्यूज़पेपर जो है आपने इट इज़ टू बी ऑनेस्ट अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अगर आपको इससे पहले न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत है और न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद है और आपको लैंग्वेज के इश्यूज़ शायद होंगे पहले, तो इन सारे केसेस में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुड नॉट बी अ मेजर इश्यू। ये आपको काफ़ी नेचुरली आएगा। मगर अगर आप ऐसे हैं कि जो बहुत सीवियर टाइम क्रंच पे चल रहे हैं या फिर आपका ऑप्शनल बहुत ही स्टैटिक है, जिसमें करंट अफेयर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है और आपका मेंस जो है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन चूज़ नॉट टू रीड द न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड आप मंथली इसको बहुत रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। और इंटरव्यूज़ के समय आपको टू मेक अप फॉर व्हाट यू लॉस्ट बिफोर आपको मिनिमम 2 न्यूज़पेपर्स हर रोज़ पढ़ना कंपल्सरी है। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो आप एक शॉर्टकट की तरह न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हैं। हूएवर एज़ एन आइडियल एस्पायरेंट इन एन आइडियल जर्नी इट इज़ रिकमेंडेड कि आप न्यूज़पेपर्स हमेशा पढ़ें। हर रोज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से जो आपको पसंद है, द हिंदू की थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है और थोड़ा लीनिंग जो होता है वो काफ़ी हद तक क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है। इंडियन एक्सप्रेस इज़ रिलेटिवली मॉडरेट ऑन दैट स्टांस एंड इवन इट्स लैंग्वेज इज़ स्लाइटली मोर अंडरस्टैंडेबल। But both the newspapers are extremely good and must be followed. उसी के साथ काफ़ी सारे लोग करंट अफेयर्स के लिए अलग चीज़ें प्रेफ़र करते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कोई भी एक आपके पसंद के कोचिंग क्लास के
कोई भी एक मैगज़ीन को मंथली हो या ईयरली डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव, आप फॉलो करें, उससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ एन एंडलेस वेल। आप उसको जितना पढ़ेंगे उतना वो आपको देयर इज़ कंटेंट दैट यू कैन रीड एंड उतने आपको एंग्ज़ायटी बढ़ेगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप केवल एक कोचिंग क्लास का एक सोर्स जो है, जो पीटी विजन का पीटी 365 इज़ अ वेरी फेमस सोर्स, शून्य सोर्स आर वेरी फेमस। ये मैगज़ीन्स आप फ़ॉलो कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र, योजना, प्रतियोगिता दर्पण, ये जो सारे मैगज़ीन्स हैं, उसी के साथ कई सारे आजकल नए सोर्सेज़ भी आने लग गए हैं। दीज़ आर समथिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू अवॉइड, क्योंकि जनरली एस्पायरेंट्स के पास उतना समय होता नहीं है। यू वुड बी आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, वही समय किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करने। आपको और एक बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर हो, करंट अफेयर्स का मैगज़ीन हो, स्टैटिक हो, अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगर या फिर उसके नोट्स नहीं बना रहे जो आप आगे जाके रिवाइज़ करेंगे, देन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना पढ़ें जो आप फ्यूचर में जा एक ही बार पढ़ के छोड़ रहे हैं और फ्यूचर में जाके नहीं पढ़ेंगे। बिकॉज़ यूपीएससी इतना बड़ा सिलेबस है, अम, इतना बड़ा उसका स्कोप है कि आपको ये याद रहना बहुत मुश्किल है, जो चीज़ आप एक ही बार पढ़ें। इसीलिए आपको बीच-बीच में उसे रिवीजन करना है। अगर कोई ऐसी ट्रिवियल सी चीज़ हो जो शायद आप वापस ना पढ़ पाएँ, तो उसे आप यू कैन बी वेरी वेल ऑफ बाय एक्चुअली नॉट रीडिंग इट एट ऑल। आप छोड़ सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ अ ट्रिवियल सेकेंडरी थिंग। अमंग द प्राइमरी थिंग जो स्टैटिक किताबें हैं, जो आपके करंट अफेयर्स है, टेस्ट सीरीज़ है, इसको आपको डेफिनिटली रिवाइज़ करना है। आई जनरली गिव अ रूल ऑफ 3 to aspirants, 3 things 3 times in 3 months. That is current affairs, static and test series. When I say static, it also includes PYQs. ये 3 चीज़ें जो है, आपको 3 महीने में 3 बार रिवाइज़ मिनिमम करनी है। अगर आपका प्रिपरेशन आपको समय देता है कि आप 4 महीने डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए कर सकें, तो वेल एंड गुड। मगर मिनिमम अगर 3 महीने हैं, तो आपको 3 बार रिविज़न करना है। व्हेन आई से रिविज़न, आई डोंट मीन कि तीनों बार आपको किताब कट एंड टू एंड पढ़नी है। आपको क्या करना है, पहली बार आप पढ़ेंगे, आप कुछ मार्क करेंगे। दूसरी बार मार्क चीज़ें ही पढ़ें, उसी में और भी अगर चीज़ें आपको सुपर मार्क करनी है, उसको आप कर सकते हैं। और तीसरी बार केवल मार्क या सुपर मार्क चीज़ें ही आप पढ़िए। बट ऑल टेस्ट्स, ऑल स्टैटिक बुक्स और अ, टेस्ट सीरीज़ आपको रिवाइज़ करनी ही है। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। अगर आप प्रीलिम्स को विदाउट 3 रिविजन्स जाते हैं, देन यू वुड बी ऑन अ वेरी शेकी ग्राउंड। मैं मैगज़ीन्स में केवल विज़न के मैगज़ीन्स पढ़ता था, चाहे वो मंथली हो, पीटी 365 हो या मेज़ 365 हो। डेली कितना घंटा पढ़ते थे? दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। एक्चुअली दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप मेरे या किसी और के कहने पे मत जाइए। मैं मेरा बताता हूँ, अगर इफ इट सर्व्स ऑफ एनी मोटिवेशन टू यू, मगर प्लीज डोंट इसको गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ की तरह मत ट्रीट कीजिए। ये केवल एक इंडिकेटिव है। मैं नॉर्मल समय पे 8 से 10 घंटे के बीच में पढ़ता था। जब एग्जाम पास आते थे, बेसिकली 1 से 2 महीने जब होते थे, तब हम 11 से 12 पढ़ते थे, 11 से 12 घंटे पढ़ते थे। और जब मैं 11 से 12 घंटे कह रहा हूँ, दैट मीन्स कंप्लीटली ऑन टेबल, डूइंग नथिंग एल्स इन पैरेलल। यदि आप उसी के साथ कुछ दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, तो ये जो आप पीरियड है, इसको आप अकॉर्डिंगली आपके लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए मैनेज कीजिए। अगर एक लो प्रोडक्टिविटी 10 आवर्स है, so you can consider it high productivity 8 hours, when all the hours that I have told before are high productivity periods. And once your classes are over and you are fairly comfortable with newspapers, आप 1 या 1.5 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, तब आपको वो सब छोड़ के केवल सेल्फ स्टडी के लिए 8 घंटे डालना बहुत इम्पेरेटिव है। शुरुआत में आपको ऐसा हो सकता है कि शायद आप इतना समय नहीं दे पाए जब आपके क्लासेस चल रहे हो, स्पेशली अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों के क्लासेस कर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाएँ? तो टाइम टेबल के लिए मेरा एक स्ट्रैटेजी ये हुआ करता था कि
एक मैक्रो टाइम टेबल बनाएँगे और एक माइक्रो टाइम टेबल बनाएँगे। मैक्रो में ये होता था कि जितने महीने बचे हैं, उस हिसाब से आप बड़ी प्लानिंग करें। आप अ, बड़ी प्लानिंग इन द सेंस आप फोर्टनाइटली या फिर मंथली टारगेट्स रखें कि आपको इस तरह तक, इस समय तक इतना-इतना खत्म करना है। और उसके बाद जो आपका माइक्रो टाइम टेबल है, वो आप मैं सिर्फ एक मंथ टू मंथ का टाइम टेबल बना रहा था। ये मंथ में हमें कितनी चीज़ें करनी है, आपके मैक्रो टाइम टेबल को फिट करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें जस्ट आपके कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा आगे का टारगेट रखें, एक बफर रखें, जो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इनवेरिएबली आप आपके टारगेट्स मिस करेंगे। और उसी के साथ डू नॉट मेक अनरीजनेबल टारगेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप योर शेड्यूल फ्लेक्सिबल। इसीलिए मैं हमेशा एक बार सिर्फ एक महीने का ही टारगेट बना टाइम टेबल बनाता था, उसके साथ भी फोर्टनाइटली रिव्यू करने का सिस्टम था। इसमें ये एक मुझे कोट याद आता है जो ड्वाइट आइजनहावर का, जो शायद यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। इन मैटर्स ऑफ स्ट्रेटेजी आई हैव फाउंड प्लान्स अननेसेसरी बट प्लानिंग इंडिस्पेंसिबल। मतलब शायद आपके प्लान्स बीच में वर्क करे ना करे, शायद ऐसा हो सकता है ये महीने आपका प्लान थोड़ा हेवायर जाए, मगर प्लानिंग बहुत जरूरी है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ठीक है जी। मीडियम की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये चैनल को काफी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी फॉलो करते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा वीक है इंग्लिश में और आपको डिसेंट कीवर्ड्स में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हिंदी ले सकते हैं। मगर वेरी प्रैक्टिकली अगर आपका इंग्लिश डिसेंट है, भले ही आप इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े हो, अगर आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुआ हो या फिर आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ हो, तो मेरा स्ट्रांग सजेशन रहेगा कि आप इंग्लिश से ही अ, ये मीडियम भरे, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, वो फिलहाल सैडली ये देश में इंग्लिश में चलती है। सोर्सेस कम होते हैं, टेस्ट सीरीज कम होते हैं। आजकल फिर भी काफी ज्यादा सोर्सेस बढ़ गए हैं, मगर अगर इफ यू हैव अ चॉइस देन डू इट इन इंग्लिश। इफ यू डोंट, अगर आपके पास कोई पर्याय नहीं है, आपको इंग्लिश में पकड़ नहीं है, तो आप हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी से हर साल टॉपर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर थोड़े से इंग्लिश के कंपैरिजन में कम होते हैं। क्या तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? अब मैं 2018 में दिल्ली गया और पैंडेमिक का कुछ समय छोड़े तो पूरे समय दिल्ली में रहा हूँ। मगर मैं एक कम्युनिटी बेस्ड हॉस्टल में था जहाँ मुझे सब्सिडाइज्ड फैसिलिटीज़ मिलती थी। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता, तो स्टेइंग इन दिल्ली, स्पेंडिंग ऑल दैट मनी ऑफ हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ योर पेरेंट्स एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, दिल्ली के पॉल्यूशन में, कंजेशन में, दिस इज़ नॉट 100% नेसेसरी। ये काफ़ी आपके सब्जेक्टिव इस पे है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आपको घर से दूर रहना चलेगा, अगर आपके घर में पढ़ाई की का माहौल इतना ना हो, अगर आपको इंटेंसिवली दूसरे स्टूडेंट्स की प्रेज़ेंस हेल्प करती है, तो आप सब दिल्ली में ज़रूर आइए। कोचिंग क्लासेस की क्वालिटी डेफ़िनिटली काफ़ी अच्छी है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मगर कोविड के बाद से ऑलमोस्ट हर एक क्लास आजकल ऑनलाइन फॉर्मेट में भी आ गया है। तो यदि आप अगर सिर्फ़ कोचिंग ही आपका पैरामीटर है, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको डाउट सॉल्विंग का भी अपॉर्च्युनिटी मिलता है। तो अगर आपको घर का कंफर्ट ज़्यादा मायने रखता है, तो आप बिल्कुल घर से कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि दिल्ली आना ज़रूरी ही है। आजकल टेलीग्राम की वजह से, ट्विटर की वजह से, फेसबुक की वजह से और दूसरे भी माध्यमों की तरफ से आपको काफ़ी हद तक सारी इन्फॉर्मेशन रिले हो जाती है। काफ़ी सारे क्लासेस हैं, काफ़ी सारे बुक स्टोर्स हैं, जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देते हैं, जो आप बिल्कुल हर एक चीज़ कुरियर करवा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मगर अगर आप आ सकते हैं और अगर वहाँ का क्विज़ीन, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के लोग आपको सूटेबल हो, तो ज़रूर आइए। बट अगेन टू रिआइटरेट, ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ। इसी के साथ आपको कोचिंग क्लास की भी एक बात होती है कि कोचिंग क्लास कितने हद तक ज़रूरी होता है। अगर आपको इससे पहले यूपीएससी या फिर
जो बेसिक सब्जेक्ट्स है यूपीएससी के, उसका कोई भी अंदाजा नहीं हो, आपको सेल्फ स्टडी में दिक्कतें हो, आपको शेड्यूल में, डिसिप्लिन में स्टिक करने में दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कोचिंग क्लास में आ सकते हैं। मगर कोचिंग क्लास इज़ नॉट अ सिने क्वा नॉन, ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, आपको आना ज़रूरी ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोचिंग क्लासेस को अम, एज़ अ फैसिलिटेटर ट्रीट कीजिए, एज़ अ एसेंशियल एलिमिनेटर नहीं। आप कुछ हर साल आधे से भी ज़्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं जो बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो ये हमें समझता है कि कोचिंग ये अनिवार्य नहीं है। इट इज़ एन ऑप्शनल थिंग इफ योर फाइनेंशियल स्टेटस परमिट्स, अगर आपको एंड टाइम परमिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपके पास समय है, 1 साल है, 1 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल कोचिंग कीजिए। और अगर आपको लॉजिस्टिकली कोचिंग फीज़िबल हो, या तो आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शंस हो, या फिर आप दिल्ली में या फिर पुणे में, इलाहाबाद में कहीं आके कोचिंग कर सकते हैं। उसका जो आसपास का जो आपका लॉजिस्टिक्स है मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल। मगर ये आप बात ध्यान रखिए कि कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी फर्स्ट। सेकंड, कि जस्ट अटेंडिंग कोचिंग इज़ नॉट स्टडिंग। आपको सेल्फ स्टडी करना ही है एट द एंड ऑफ द डे। कोचिंग आपको केवल दिशा दिखाएगा, आपको मार्ग दिखाएगा, मगर वो मार्ग पे आपको चलना है। आफ्टर अटेंडिंग अ क्लास, यू हैव टू गो होम एंड रीड। यू हैव टू कम होम एंड रिवाइज। इफ यू डोंट डू दैट, इसीलिए तो आपका कोचिंग क्लास भी अम, व्यर्थ जा सकता है। और आप जो समय बिताते हैं, अगर आप 2 घंटे बिताते हैं कोचिंग क्लास में, तो आपके इफेक्टिवली 4 घंटे जो है वो हर रोज यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि आप जाने का 1 घंटा पहले और आने के बाद का, और एनर्जी ड्रेन होता है, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं वहां जाके, सोशल डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं, आपको खर्चे ज्यादा हो सकते हैं जाने आने में। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो ऑनलाइन फॉर्मेट को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो आपका समय और ये दोनों बढ़ाएंगे। अगर ऑनलाइन फॉर्मेट आपके लिए फीजिबल नहीं है तो बिल्कुल ऑफलाइन कीजिए। किसी ने यहाँ लिखा है कि सर कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ, मगर मेरा ये सजेशन था कि मैं सारे प्रीवियस ये जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन थे इसे पहले एड्रेस करूँ, ताकि सारे लोगों को एक साथ फायदा हो और एक लॉजिकल ऑर्डर में हम चले। उसके बाद मैं सारे कमेंट्स को एड्रेस करूँगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। और एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली जो पूछा जा रहा है कि ऑप्शनल क्या था? मैं एक बार रीइटरेट करता हूँ। सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, और फॉरेस्ट में मेरा ऑप्शनल फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी था। सिलेबस समझ नहीं आता तो क्या करें? तो यदि आप कोचिंग क्लास में नहीं हैं, अगर कोचिंग क्लास में आ रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी अ मेजर इश्यू। अ गुड टीचर शुड बी एबल टू एक्सप्लेन को द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन यूपीएससी आल्सो इन एन ईजी वे। यूपीएससी में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आपको बाउंसर ही जाए। मगर अगर आप कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके कोचिंग क्लासेस हो चुके हैं और अभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आने के लिए आप कई सारे तरीके हैं। आप गूगल कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे आजकल सब टॉपिक्स पे वीडियोज़ हैं, फ्री रिसोर्सेज़ हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल बड़ी आसानी से, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। और यू कैन रीच आउट टू अ सीनियर, रीच आउट टू एन ऑफिसर, रीच आउट टू अ पीयर। प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। इट इज वेरी वेरी इंपेरेटिव दैट आप आपका ऑकवर्डनेस, आपका जो इंट्रोवर्टनेस है उसको थोड़ा सा मैनेज करके आप चीजों को, लोगों को हेल्प मांगे, क्योंकि आप जितनी हेल्प मांगेंगे आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। यदि कोई चीज आपको 10 मिनट लग रहे हैं ऑनलाइन सर्च करने में, और लाइब्रेरी में आपके साइड में बैठा हुआ आपका दोस्त आपको 1 मिनट में वो बता पा रहा है, तो आप बिल्कुल काफी सारा समय बचा पाएंगे। सेम गोज़ फॉर गूगल सर्च। गूगल सर्च अगर आप करने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप स्पाइरल में जाएँ। आप उसी के कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज़ें भी पढ़ने लग जाएँ और आपका समय बर्बाद हो। तो आपके साथ साथियों का, आपके मेंटोर्स का बिल्कुल आप हेल्प लीजिए। Even I am available for any doubts that you have. I will share my social media handles and my email with you guys. तो you can आप लोग बिल्कुल हमें कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मगर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ 2 चीज़ें कीजिए। एक, आपके दोस्त को पूछिए कि अगर ये स्टेज पे ये पर्टिकुलर टॉपिक कितना समझना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आगे के चैप्टर्स में कोई भी सब्जेक्ट के
आपको वो इन डिटेल और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। इनिशियल चैप्टर्स में कई सारे आगे के चैप्टर्स के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, जो कई बार आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए आप अ, इतनी चिंता ना करें, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आगे जाके वो टॉपिक आपको समझ में आए। आप साथ ही में क्या कर सकते हैं, एक साथ में एक पेज रखिए, कोई चीज़ जो आपको ना समझ में आए, उसका पेज नंबर वहाँ नोट कर लीजिए। पूरी किताब पढ़ने के बाद यदि आपको फिर भी ये डाउट रहता है, तो फिर आप वो पेज पे लिखे हुए डाउट्स रहते हैं, तो फिर आप किसी चीज़ की हेल्प लीजिए। इफ नॉट द एंटायर बुक, आप कम से कम चैप्टर तक तो रुकिए, कोई भी और सोर्स हेल्प लेने से पहले। नोट्स पढ़ने चाहिए ये टेक्स्ट बुक, और नोट्स कैसे बनाएँ, रिविज़न कैसे करें? ये कई सारे सब क्वेश्चन्स भी जो कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, उसी संदर्भ में है। तो नोट्स के बारे में मैं बताता हूँ कि नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूटली नेसेसरी। नोट्स आपके लिए एक आपकी रिवीजन फास्ट करने के लिए, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए, राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर ये 100% हर एक सब्जेक्ट के नोट्स होना ज़रूरी नहीं है। जितना हो सके आप बनाइए, बिकॉज़ इट विल हेल्प यू, जितने सब्जेक्ट्स का हो सकता है, क्योंकि आपका समय रिवीजन में काफ़ी बचाएगा, और आपका, क्योंकि आप साथ ही में लिख रहे हैं, तो आपको मेमोरी इम्प्रिंट काफ़ी ईज़िली हो जाएगी। तो जितना हो सके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, पर्टिकुलरली मेंस के लिए आप नोट्स जितने बना सकते हैं उतना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स और ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाना कंपल्सरी है। दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आप आपका डिस्क्रिप्शन यूज़ करें। आपका उस सब्जेक्ट पे जितना हैंड है, उस पे डिपेंड करता है। इफ यू आर फेयरली कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट, देन यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। बट इफ यू आर इवन स्लाइटली इन डाउट, देन यू शुड बाय ऑल मीन्स मेक नोट एज़ लॉन्ग एज़ द टाइम परमिट्स। प्रीलिम्स में यू कैन बी अ लिटिल जुडिशियस, सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने केवल पॉलिटी और एनवायरनमेंट के नोट्स बनाए थे। बाकी सब मैं टेक्स्ट बुक में हाइलाइट करके पढ़ता था। तो सिर्फ़ जो हाइलाइटेड मटीरियल है वो पढ़ने की वज़ह से वो काइंड ऑफ नोट्स जैसा ही बन गया था, बिना ज़्यादा समय गँवाए। पॉलिटी वाज़ टफ, इसीलिए मैंने वो नोट्स बनाए, और एनवायरनमेंट, क्योंकि वो किताब ज़्यादा बड़ी थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैंने नोट्स बना लेने चाहिए। बाकी कहीं पर भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के समय नोट्स नहीं बनाए थे। मैं हमेशा किताब से ही पढ़ता था। तो आप देख सकते हैं। अब मगर अगर आपको लगता है कि आपको आंसर सॉरी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कम है, अगर आप स्लो लिखते हैं, तो इट वुड हेल्प अगर आप नोट्स बनाएँ, ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही साथ इससे भी आपको काफ़ी देर तक लिखने की प्रैक्टिस होगी। नोट्स का एक और फ़ायदा ये होता है कि नोट्स आपको फ़ोकस में रखता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है, आपका माइंड वॉन्डर अवे नहीं होता है, आपका ध्यान हमेशा किताब पर रहता है। तो ये काफ़ी एडवांटेज होता है, और ज ज क्योंकि मुझे कई बार आई यूज्ड टू ड्रिफ्ट अवे व्हेन आई वाज़ रीडिंग, तो सेकंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मैं नोट्स बनाना शुरू करता था। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के नोट्स बनाए थे। मेंस में लगभग हर एक सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स थे। और नोट्स का फॉर्मेट, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स जहाँ पे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे काफ़ी कम स्कोप है वो कंटेंट रिवीजन की या फिर कोई करंट अफेयर्स की चीज़ ऐड करने की, वहाँ पे मैं रिटन नोट्स बनाता था। और जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि ये डायनामिक पार्ट है, वहाँ पे जैसे आईआर हो गया, तो वहाँ पर मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता था। मैं दोनों करता था और दोनों फॉलो करता था, और कुछ-कुछ जगह पे मेरे एक ही सब्जेक्ट के नोट्स कुछ ऑनलाइन फॉर्मेट में और कुछ ऑफलाइन फॉर्मेट में होते थे। कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन फॉर्मेट में आपने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ के नोट्स बना लिए, मगर उसके बाद भी आपको कई सारा नया कंटेंट ऑनलाइन किसी और माध्यम से मिलता है, या फिर आपको ऑनलाइन केवल टाइप करके नोट्स बनाने की इच्छा हो, तो आप बिल्कुल उसको भी करा सकते हैं। मगर मेक श्योर कि दीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये रिडंडेंट नहीं है। आप वही चीज़ वापस ऑनलाइन में ना बनाएँ। अगर जो चीज़ मिसिंग आउट है, उसी को केवल ऑफलाइन या ऑनलाइन में बनाएँ। दोनों मिला के एक कंप्लीट सोर्स होना चाहिए। उसमें रिपिटिशंस नहीं होने चाहिए, ताकि आप रिविज़न काफ़ी क्विकली कर सकें, ताकि आपको बार-बार रिपीटेड चीज़ें पढ़नी ना पड़े। नोट्स की साइज़ पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी होनी चाहिए? तो वो टू बी ऑनेस्ट उतनी जितना आप कंफर्टेबल हो। अगर आप छोटे-छोटे फ़ॉन्ट में लिखना और पढ़ना पसंद करते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और आपको केवल कम ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो आप बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम नोट्स बना सकते हैं, एक-एक टॉपिक को एक-एक पेज पर रखकर। मगर अगर आपका फ़ॉन्ट बड़ा हो, आपको छोटी चीज़ें पढ़ने में दिक्कतें हो, या फिर आपको
वो सब्जेक्ट का इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको थोड़े इन डेप्थ नोट्स बनाने पड़ रहे हो, तो बिल्कुल बनाइए। द साइज ऑफ द नोट्स इज़ नॉट एज़ इम्पोर्टेंट एज़ योर फ़ैमिलियरिटी विथ नोट्स। अगर आप 200 पेजेज़ के भी नोट्स बनाते हैं किसी सब्जेक्ट के, मगर आप उसको रिपीटेड रिवीजन करके काफ़ी फ़ैमिलियर हो जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। येस, कई बार शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं क्विक रिविजन्स में, मगर लॉन्ग नोट्स में भी आप आपके नोट्स में भी हाइलाइटर से मार्क करके उसी को शॉर्ट बना सकते हैं। उसमें एक और तरीका होता है फास्ट रिवीजन के लिए, 2 टाइप के नोट्स बनाइए। एक जो बड़े नोट्स, मैक्रो नोट्स, जो आप किताब पढ़ने के बाद पहली बार बनाएँगे या दूसरी बार बनाएँगे। वो शायद आपके 25% 25 टू 50% ऑप्शनल के 25 टू 50% साइज़ पे आ जाएगा, 1:2 रेशियो बेसिकली। और अगर आप उसके बाद अ, और भी उसे छोटा करना चाहे, तो एक माइक्रो नोट्स का कंसेप्ट होता है कि आप से मान लीजिए दिस लक्ष्मीकांत व्हिच इज़ अ 500 पेज बुक। आप फर्स्ट स्टेज में उसे 100 120 पेजेज़ में ले आते हैं नोट्स बना के। उसके बाद उसमें से बहुत ही क्रिटिकल जो छोटी चीज़ है, जो आप बार-बार भूलते हैं, प्रीलिम्स या मेंस पर्सपेक्टिव से, उसको एक अलग से 20-25 पेजेज़ में अलग से एक माइक्रो नोट्स बनाइए। जनरली रिवीजन के समय पहले मैक्रो नोट्स पढ़िए और इमीडिएटली बिफोर द पेपर माइक्रो नोट्स पढ़िए। ये आपको कॉन्फिडेंस और आपके नॉलेज गैप को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन कैसे करें काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है, इसको अगर आप किसी और थोड़ा डीप डीप में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। रिवीजन करते समय एक ध्यान रखिए कि आप जब पहली बार पढ़ेंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पूरा सब्जेक्ट याद हो, या फिर आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर वो टॉपिक को आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप तुरंत आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। डेफिनिटली यू विल फॉरगेट, रिवीजन उसी के लिए है। रिवीजन करते समय एक बात ध्यान रखिए कि आप गिव योरसेल्फ टाइम टू फॉरगेट। आप थोड़ा-सा भूलने का समय दीजिए, बट इतना नहीं कि वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी इरोड करे। आप जनरली 2 या 3 महीने का गैप बिटवीन ईच रिवीजन, मिनिमम इवन लेसर इफ यू आर क्लोजर टू एग्जाम, रखिए, ताकि आप थोड़ा-थोड़ा टच में रहते जाएँ। अगर आप ऐसे हैं जिनको हर रोज़ थोड़ा-सा पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो यू कैन डू दैट। आप एक सब्जेक्ट पढ़ते समय दूसरा सब्जेक्ट पैरेलल में 1 या 2 घंटे डिवोट करके पढ़ लीजिए। या फिर आप ऑप्शनल के साथ टच में रहने के लिए हर रोज़ अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, तो आप 1 या 2 घंटे ऑप्शनल को डिवोट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो रिवीजन करते समय एक बात ध्यान में रखिए कि यू शुड मेक योर नोट्स और योर मार्किंग ऑन टेक्स्ट बुक सच दैट आपके हर रिवीजन में आपको थोड़ा कम एफर्ट लगे। यदि आपको एक एक किताब पढ़ने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो अगली बार आपको रिवीजन करते समय अ, आपको कुछ नहीं तो 6 टू 7 आवर्स लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। क्योंकि फिर आप आपके पढ़ मार्किंग में या फिर आपके पढ़ने में थोड़ा-सा कुछ गलत कर रहे हैं। शायद आप ज़्यादा मार्क कर रहे हैं या फिर ज़्यादा बड़े नोट्स बना रहे हैं। And instead of a deep, slow 1 or 2 revisions, I always prefer having short and fast multiple revisions. कि आप अगर प्रीलिम्स से पहले 3 से 4 बार अगर स्टैटिक पढ़ पाते हैं, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज, तो ये ज़्यादा बेहतर है। सेम फॉर मेंस। मेंस में जनरली 3 महीने मिलते हैं, आप 3 बार अगर रिवीजन कर पाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि देयर इज़ नो वन साइज़ फिट्स ऑल। जो शायद एक एक्स-वाई-ज़ेड टॉपर टॉपर के लिए रिकमेंडेड हो, वो शायद उनके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा फिट करे। यू डोंट नीड टू फॉलो एनीबॉडी एल्सेस गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ। आप कुछ फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडरेशन में रखिए। नंबर 1, आपका उस टॉपिक का इंटरेस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट या सेकंड रीड में आपको कोई चीज़ पढ़ने के लिए आप जो ड्राइव के साथ पढ़ेंगे, जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, ये आपका स्पीड और आपका अंडरस्टैंडिंग डिटरमाइन करेगा। यदि आप बिल्कुल ही वो टॉपिक को पसंद नहीं करते हैं, देन प्लीज़ डोंट फोर्स योरसेल्फ टू चूज़ एन ऑप्शन जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड ना हो। दूसरी बात है फ़ैमिलियरिटी विद द ऑप्शनल। मतलब अगर आप उस ऑप्शनल में आपका बैचलर्स हो या फिर आपने कोई शॉर्ट प्रोफेशनल कोर्स किया हो, तो बिल्कुल आप उस आपके बैकग्राउंड को फ़ोकस कर सकते हैं। टेक्निकल ऑप्शंस जो इंजीनियरिंग के लिए है, या फिर जो आपके सीए हैं, वो कॉमर्स ले सकते हैं। डॉक्टर्स समटाइम प्रेफर एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंसेस।
तो ये आप आपके प्रीवियस फ़ैमिलियरिटी विद द ऑप्शनल के साथ बिल्कुल उसको मद्देनज़र रखिए। तीसरा है नेचर ऑफ द ऑप्शनल। ये प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट है। नेचर ऑफ द ऑप्शनल में क्या-क्या आता है? क्या वो ऑप्शनल बड़ा है, छोटा है? एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये रिलेटिवली छोटे ऑप्शनल्स हैं। ऑन द अदर हैंड कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स ये बहुत बड़े हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पढ़ते समय आप कितना समय ले रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शनल्स है, उनकी क्लासेस आपके 3.5 से 4 महीने में हो जाती है। On the other hand, commerce, engineering subjects, political science, these takes 7 to 8 months minimum. तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि आपका ऑप्शनल में स्कोरिंग पैटर्न कैसा है? कुछ ऑप्शनल अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी पैटर्न इज सच कि देयर आर सर्टेन ऑप्शनल दैट हैव बेटर स्कोरिंग। ये दिस इज अ फैक्ट। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, दीज आर जियोलॉजी, दीज आर सर्टेन ऑप्शनल्स जिसमें ज्यादा स्कोरिंग पॉसिबल है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सर्टेन एवरेज ऑप्शनल्स जैसे मेडिकल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे स्कोर्स थोड़े एवरेज आउट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है यदि आप सेफ खेलना चाहते हैं by by choosing evergreen options जो काफी हद तक आपको हर साल डिसेंट रिटर्न्स दे रहे हैं, या फिर स्टार्टअप ऑप्शंस जिस जो एंथ्रोपोलॉजी वगैरह जो हाल ही के कुछ सालों में काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा है बच्चों के लिए, तो ये आप चूज कर सकते हैं व्हाट अप्रोच यू वांट टू चूज। Both approaches are nice and it is absolutely dependent on what your frame of mind is. उसी के साथ ही साथ नेचर ऑफ द ऑप्शनल, क्या उसमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, क्या उसमें काफी ज्यादा पैराग्राफ वाइज बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की आदत है, क्या उसमें डायग्राम्स है, ये आपको कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले कंसिडर करना चाहिए। यदि आप डायग्राम्स में अच्छे नहीं हो तो ज्योग्राफी, मेडिकल साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शंस में आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आपको लैंग्वेज में इशू हो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने में इशू हो, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझने में इशू हो, तो पॉलिटिकल ह्यूमैनिटीज कैन बी एन इशू। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, these options can be tricky for you. Numericals आपको अगर ज्यादा पसंद हो तो इंजीनियरिंग ऑप्शंस, कॉमर्स, these are good options to take. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अपने डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए। हाल ही में फॉर स्टूडेंट जिनके लिए इनमें से कुछ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है, एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोलॉजी आर टू ऑप्शंस दैट आई जनरली रेकमेंड टू स्टूडेंट्स, जो आप कर सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज दे आर लेटली बूमिंग एंड दे गिव गुड स्कोप विथ शॉर्ट syllabus and very easy to understand as long as you have a logical frame of mind, और स्पेशली अगर आपका साइंस बैकग्राउंड हो तो आप ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं। um, और क्या क्वेश्चंस हैं? सोशल मीडिया का यूज कैसे करें? सोशल मीडिया इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, इट्स अ डबल एज sword। अगर आप उसको वाइजली यूज करें तो शायद आपको अम, ये कोई बेनिफिट दे सके, मगर इसके उतने ही डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अम, अब मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। जनरली नॉर्मल पीरियड्स में मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक्टिव रखता था, और मैं बाकी सारे कोई भी मीडियम शुरू नहीं रखता था। जैसे ही एग्जाम से 2 या 3 महीने का पीरियड आ जाता है, तब मैं सारे सोशल मीडिया बंद कर देता था, केवल व्हाट्सएप ऑन रखता था। और व्हाट्सएप इसीलिए ऑन रखता था ताकि क्योंकि मेरे इंटरैक्शन इतने ज्यादा हुआ नहीं करते थे। व्हाट्सएप चैट वाज नॉट अ मेजर टाइम डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। बाकी सारी चीजें मैं ऑफ कर देता था। I was not on Twitter before becoming an officer. I was not using Facebook for a considerable amount of time. और दूसरा टेलीग्राम इज वन यूजफुल चैनल। टेलीग्राम में काफी सारे अच्छे चैनल्स हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। स्पेशली अगर आप व्हाट्सएप बंद कर रहे हैं तो टेलीग्राम इज अ गुड ऑल्टरनेटिव, ताकि वो आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, कोई कम्युनिकेशंस है, कोई सोर्सेस, टीचर, कोई सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स की कोई चीजें जो शायद आपकी मिस हो, ये सारी चीजों के लिए टेलीग्राम इज अ गुड सोर्स। काफी सारे अच्छे चैनल्स हैं, कोचिंग क्लासेस के भी चैनल्स हैं। देयर इज अ वेरी पॉपुलर चैनल नोन एज कप्तान। उसके चैनल है जो आपको एग्जाम डेट्स के बारे में भी काफी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और नॉन यूपीएससी अल्टरनेटिव्स के लिए भी जैसे आईएफएससीए हो गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, स्टेट सर्विसेज हो गए, उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है। दीज चैनल्स यू कैन फॉलो। There are a lot of professors also who have channels of their own. Um, you can Atish Mathur sir is one of them. He has a decent channel and you should definitely follow it.
बट इट इज ऑफ कोर्स अ डबल एज सॉर्ड। जो दिक्कतें हो सकती हैं, नंबर वन, आप टाइम डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा हो सकते हैं। नंबर टू, बिकॉज यूपीएससी जर्नी इज अ वेरी टफ जर्नी, क्योंकि आप आपके यू प्राइम एज ऑफ यूथ में है, और जब आप दुनिया से आइसोलेट होकर आप पढ़ रहे हैं, तब आपको दूसरी सोशल मीडिया, सोशल लाइफ, आपके दोस्तों की, आपके रिलेटिव्स की, आपके पीयर्स की देख के शायद थोड़ा-सा आपका डिस्टॉर्शन, आपको डिस्करेज डिसुएशन कर सकता है। तो आप अगर इफ यू आर समबडी हू मे बी अफेक्टेड बाय दिस, सारे लोग नहीं होते, मगर अगर आप हैं और आपके अगर फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो यू कैन डेफिनिटली अवॉइड सोशल मीडिया। अ, a lot of good officers have completely sacrificed their 2 to 3 years of social media and completely switched off everything, including WhatsApp. WhatsApp is a very harsh step to be honest, but आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप अदरवाइज इंटरनेट एक्सेस है और रेगुलरली चीजें अपडेट रखने की आपकी हैबिट हो तो। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ऑन रखना इज अ गुड बेस्ट प्रैक्टिस। उसी के साथ अगर आप सोशल मीडिया को एज अ मीन्स ऑफ स्टडिंग, एज अ मीन्स ऑफ करंट अफेयर्स को देखते हैं, तो यू मे नॉट बी completely right, because for all the benefits that social media gives you, एक आध एक्स्ट्रा आर्टिकल, एक आध एक्स्ट्रा कोई ऑफिसर का अकाउंट, एक आध एक्स्ट्रा बेस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल, या फिर करंट अफेयर्स की न्यूज के लिए आप काफी ज्यादा समय सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यू विल बी मच बेटर ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर और अ करंट अफेयर्स मैगजीन by using social media. Twitter especially is a very tricky place. The nature of the platform is such that a lot of officers, including myself, do post our updates on Twitter, and there are a lot of channels, there are a lot of these things. So you can be very judicious in using them. Twitter you can avoid. On YouTube, definitely there are good channels uh, that should be followed, and you can make good use of YouTube. Yeah, for example, UPSC Times itself is a good channel that you can follow. There are topper stocks that you should uh, watch from time to time so as to get an idea of what toppers are doing these days, of whether what you are doing is off track. It may give you good ideas, and most importantly it gives you motivation. किसी टॉपर से बात करते हुए, किसी टॉपर के प्रिपरेशन स्ट्रगल सुनते समय अगर आप रिलेट कर पाते हैं, तो आप काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और इट हेल्प्स मी अलॉट। मैं कई बार वो देखता था वीडियोस। यूट्यूब पर आप दूसरे कोचिंग क्लासेस, टीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट डज नॉट टेक अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर टाइम। Unless you are following a proper course on YouTube, any other time that you spend on it should not be considered as full scale studying. It may be seen as facilitation, it may be seen as uh, semi studying of sorts, but it cannot be a substitute for full time study. मैंने यूपीएससी की तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैंने ये पहले एड्रेस कर चुका है, बट मैंने एंटायरली ऑफलाइन की थी। ठीक है, मेरे पास जो मेजर क्वेश्चंस हैं, वो मैंने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव स्पेशली काफी हद तक एड्रेस कर दिए हैं। मैं फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एंड में और थोड़े डेडिकेटेड चीजें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिविल सर्विसेज वाले भी एस्पायरेंट्स हैं। मैं उनको एक बार फ्री करके देन वी कैन हैव अ स्मॉलर ग्रुप टॉक अबाउट फॉरेस्ट सर्विसेज। बची बात मेंस की। मेंस के लिए व्हाट यू शुड डू इज, मेंस के लिए 3 पिलर्स ऑफ मेंस। एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल। अगर आप प्री दे रहे हैं, प्री से पहले आपको ये 3 चीजें ठीक करनी ही है। यू कैन नॉट हैव एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल पेंडिंग बिफोर राइटिंग प्रीलिम्स। Please understand that. Please decide your timetable accordingly. You should not over prepare for prelims while sacrificing for mains. That was the mistake that I had done in my preparation in the first attempt. Please do not make the same mistake. uh, Ethics ऐसे ऑप्शनल आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड गेट देम डन। जीएस 1 2 एंड 3, इसमें से आधा आपका प्रीलिम्स से हो जाएगा, बट यू वुड स्टिल नीड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड सम डेडिकेटेड नोट्स apart from your prelims notes. And then of course there are certain chapters which are absolutely absent and new for you in mains. For example, social justice, governance, society, ethics. उसके लिए आप अगर प्रीलिम्स से पहले प्रिपेयर कर पाते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर नहीं भी कर पाते हैं,
तो आप एक फास्ट मोड में प्रीलिम्स के बाद उसे बिल्कुल कीजिए। सीसैट के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन रह गया था प्रीलिम्स से। सीसैट के लिए बिकॉज़ आई हैव नॉट फॉलोड मायसेल्फ, आई विल नॉट टेल यू एनी सोर्स दैट आई मायसेल्फ हैव नॉट टच्ड। तो इसलिए आप किसी भी दूसरे टॉपर के सीसैट कोर्सेज को देखिए। मगर द वे टू गो अबाउट इट, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पर्टिकुलरली नहीं है, तो आपको मैथ्स रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। यू कैन कीप वन डे एवरी वीक, उसमें से 2 या 3 घंटे आप रेगुलरली सीसेट के लिए रख सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, तो आप मैथ्स के लिए रखिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप, तो आप इंग्लिश के लिए रखिए, और लॉजिकल रीज़निंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सीसेट को कृपया लाइटली ना लें। मेरे कई सारे ऑफिसर दोस्त भी हैं, जो आफ्टर सिलेक्शन अटेम्प्ट्स में भी सीसेट की वजह से रुक गए हैं, और कई सारे दोस्त हैं जो हर बार प्रीलिम्स में जीएस कट ऑफ निकाल के जीएस कट ऑफ निकाल के भी सीसैट नहीं किया, इसीलिए दे वर नॉट एबल टू राइट मेंस। सो प्लीज टेक सीसैट वेरी सीरियसली, प्रैक्टिस सीसैट वेल। लास्ट 3 to 4 months में इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रिविजन, इंक्रीज सीसैट के लिए जो आप समय दे रहे हैं। एंड द बेस्ट स्टडिंग फॉर सीसैट इज प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, द लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस जो आपको फ्री में काफी सारे रिसोर्सेज देते हैं, टेस्ट देते हैं, सोल्यूशंस देते हैं, मटेरियल देते हैं, वीडियोस देते हैं, तो आप उसको बिल्कुल यूज करें। सीसेट के लिए अलग से क्लास लगाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। डू इट ओनली इफ यू आर एब्सोल्युटली वेरी वीक इन सीसेट। सीसेट के लिए क्लास बिल्कुल ना लगाए, करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस ना लगाए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए क्लासेस ना लगाए। प्लीज टेक दैट एज माय सजेशन। इफ प्लीज टेम्पर योर ओन सिचुएशन, आपकी जो सिचुएशन है, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप उसको यूज करें, मगर मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि ये सारी चीजें ना करें। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, बस आपकी जो हॉबी है उसे थोड़ा पैरेलल में परस्यू करते रहे, जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए, जितना हो सके दूसरा रीडिंग कीजिए, और अ, जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश हो या हिंदी, आप या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज, उसमें फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने की थोड़ी प्रैक्टिस करिए। ये स्टेज पे आपके लिए इतना ही जरूरी है। आप बिल्कुल मेंस की एग्जाम के बाद डेडिकेटेडली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी से उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफी स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, स्पेशली जो दृष्टि के या फिर किसी दूसरे फोरम के, काफी अच्छे कोचिंग क्लासेस के जो मॉक इंटरव्यूज है उसे देखते रहते हैं। इट इज अ गुड पास्ट टाइम जो आपको कनेक्टेड रखता है आपके सिलेबस से, मगर दैट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप आपके डेली शेड्यूल में से हर 2 घंटा यूट्यूब के लिए निकालते हैं जिसमें आप मॉक इंटरव्यूज या फिर टॉपर टॉक्स देखते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज स्टडी। इट मस्ट बी डन ओवर एंड अबव जो आपका यूजुअल स्टडी पैटर्न हो। और जो भी आपको इंटरव्यू के रिलेटेड दिक्कतें हैं, ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग क्लास, ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूब चैनल हैज रिसोर्सेज डेडिकेटेड टू दैट। इंटरव्यू के लिए अभी से कृपया ज्यादा एफर्ट्स ना डालें। मगर बस हॉबीज को परस्यू करते रहें, नॉट जस्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो आपको सेन रखेगा, वो आपको काफी प्रोडक्टिविटी हाई रखेगा आपकी। The next question is on answer writing. Answer writing is probably the single most important thing you can do for mains. रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं, आपका थोड़ा सा प्रीलिम्स का बैकग्राउंड हो चुका है, दिस विच जनरली हैपेंस एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, आपने हर रोज 2 से 5 आंसर्स लिखने चाहिए। दिस कैन कंटिन्यू अंटिल अप्रैल। अगर आप वो कर पाते हैं, आप यू विल बी फार अहेड ऑफ ऑल अदर एस्पायरेंट्स, जितने आप अगर उसको डिसिप्लिन से कर पाते हैं तो। राइट इट विद इन टाइम, राइट इट विथ ऑल सीरियसनेस, राइट इट without immediately looking at the book once you've read the question, and write it while respecting the space constraint that UPSC has. And please, if possible, गेट इट इवेल्युएटेड। अगर हो सके तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज नहीं हो पाता है, देन अ मेंटोर और अ सीनियर और योर पीयर मस्ट रिव्यू इट at least in the initial periods, because it may happen that you may think that you're writing good answers but they may be extremely off track.
वन इजी वे टू कंटिन्यू आंसर राइटिंग एंड इवेल्युएटिंग इज, आप सीधा टॉपर्स कॉपी देखिए, टॉपर्स कॉपीज में जो क्वेश्चंस हैं खुद पहले लिखिए और फिर उसको कंपेयर कीजिए टॉपर्स के आंसर्स के साथ। आप खुद ही आप काफी हद तक इवेल्युएट कर पाएंगे। यस, आई थिंक मेजर आपने हमने सारे जो मेरे लिस्ट थी कॉमन क्वेश्चंस की वो मैंने कवर करी है। अब आई विल स्टार्ट टेकिंग द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। Tell us sources for, I'm going from the top. Tell us the sources for clearing prelims with good margin. I've mentioned the sources. Prepare optional for forest services. Forest services questions I will take later. गुड मार्जिन के लिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए टिप्स। गुड मार्जिन के लिए प्लीज फोकस ऑन रिवीजन, प्लीज फोकस ऑन अ डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट। 85 से 90 के बीच में आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। आपने इससे पहले काफी सारे टेस्ट सीरीज दे होने चाहिए। एंड यू शुड कीप एन ओपन माइंड इवन फॉर क्वेश्चंस जहां पर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आता हो। कई बार आप थोड़ा कैलकुलेटेड गेसेस, कॉमन सेंस या फिर आपका प्रीवियस नॉलेज जो यूपीएससी आने से पहले है वो यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। प्लीज आपका माइंडसेट ठीक रखिए। उस समय अगर आपको डायरेक्टली बाय नॉलेज भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करते मिल रहे हैं, फिर भी आप स्टे कनेक्टेड, स्टे कमिटेड टू द कॉज और आप कंटिन्यू रखिए आपका प्रीलिम्स का जो ये है अटेम्प्ट। डोंट गिव अप until the paper is over. Your battle continues until you are stepping out of the classroom. End तक try and think about questions even where you are not entirely sure. Every topper will tell you a good chunk of their answers came from flukes. A good chunk of their answers came from questions that they did not know 100% about. So you should not be worried. You should not be knowing every question in and out. You just need 60 to 65 questions right in an attempt of 90 to get through. एंड या प्रीलिम्स की तैयारी एनसीईआरटी से हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी। आपको एनसीईआरटी के साथ कई सारे सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा किताबें ऐड करनी पड़ेंगी। उसके बिना वो नहीं हो पाएगी। नोट्स कैसे बनाने हैं एनसीईआरटी के? हर एक एनसीईआरटी के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है। केवल ज्योग्राफी के नोट्स बनाइए। बाकी आप जो भी बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, अ बिपिन चंद्रा, इसमें से नोट्स बनाइए। डायरेक्ट एनसीईआरटी से नोट्स शायद आपको इतने ज्यादा हेल्पफुल ना हो। रादर व्हाट यू कैन डू इज, एक बार आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो सेकंड रीड देते समय उसको हाइलाइटर से पढ़िए। तो हाइलाइटर से मार्क करेंगे तो वही आपके नोट्स बन जाए। एनसीईआरटी 6 टू 12 के नोट्स कैसे बन आपको 6 टू 12 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल 11th एंड 12th का पढ़िए। और ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करें? ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर करते समय आप ये काम कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप बेसिक बुक्स और एनसीईआरटीज पढ़ें। जितना समय आप दिन में निकाल पाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ग्रेजुएशन के समय व्हाट यू कैन डू इज सेकंड और थर्ड ईयर में केवल आप सोर्सेस पढ़ें। फर्स्ट ईयर में इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर। सेकंड, अगर आप 4 ईयर कोर्स में है तो, अगर 3 ईयर कोर्स में है तो बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए। सेकंड और थर्ड ईयर में सोर्सेस पढ़ें, सारे सोर्सेस एनसीईआरटीज एंड एडवांस बुक, बेसिक बुक्स पढ़िए। जितना हो सके उतने नोट्स बनाइए। फोर्थ ईयर में स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज seriously, paid test series for mains and good number of tests for prelims, and make sure that you have notes for the essential subjects by the fourth year. अगर आप इमीडिएटली आउट ऑफ कॉलेज एग्जाम देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। काफी काफी सारे ऑफिसर्स हैं जो देते हैं, बट द मोर पॉपुलर ऑप्शन इज टू टेक 1 ईयर गैप आफ्टर योर ग्रेजुएशन, ताकि आप कायदे से कोचिंग क्लासेस कर सके। अगर हो सके तो कोचिंग क्लासेस ग्रेजुएशन के समय खत्म कीजिए, मगर आपका ग्रेजुएशन अगर वो नहीं परमिट करता है तो आप बिल्कुल आपके ग्रेजुएशन के बाद वाले साल में कोचिंग क्लासेस कीजिए, सारे नोट्स परफेक्ट कीजिए और फिर अटेम्प्ट दीजिए। डू नॉट रश इनटू अटेम्प्ट्स, क्योंकि अटेम्प्ट्स 6 ही है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 9 फॉर द अदर्स। हमें इनिशियली समझ में नहीं आता है कि एक अटेम्प्ट का वैल्यू क्या होता है। हम अटेम्प्ट्स वेस्ट कर देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। डू नॉट गिव एन अटेम्प्ट फॉर जस्ट फॉर द फील कि जस्ट एग्जाम जाके देखते हैं। इफ यू आर नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड फॉर द अटेम्प्ट, प्लीज डू नॉट गिव इट। एटलीस्ट 60 टू 70% प्रिपरेशन हो जानी चाहिए मेंस की, और 90% फॉर प्रीलिम्स, 80% फॉर प्रीलिम्स आप अटेम्प्ट करने से पहले। अगर नहीं हो तो बी वेरी जुडिशियस अबाउट योर अटेम्प्ट, कंसिडर कि आपने अटेम्प्ट देना है या नहीं। बिना पढ़े प्लीज अटेम्प्ट मत दीजिए, आपको बाद में काफी पछतावा होगा। जब आपके पास आप 5वें अटेम्प्ट में होंगे, 6वें अटेम्प्ट में होंगे और आपको याद आएगा शिट, अगर मैंने एक अटेम्प्ट वेस्ट ना किया होता तो आपके पास एक और अटेम्प्ट होता।
बीच के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने एड्रेस किए हैं। सर यूपीएससी में 2 वीक बाद डिमोटिवेशन आ जाता है। ये मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट मैं थोड़ी देर में कवर करता हूँ। आर शुभ्रा रंजन नोट्स सफिशिएंट फॉर पीएसआईआर? 90% यस, 10% न्यूज़पेपर से आप कवर कर लीजिए और टॉपर्स कॉपीज से। कितने इयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करें? 2013 शुड बी द बेंचमार्क। 2013 से बाद में कीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए? मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। मुझसे बेहतर है आप, मेरा सजेशन रहेगा जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं उनके वीडियोस देखें, शायद आपको ज्यादा बेहतर आंसर्स मिले। डिड आई मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स? फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव यस, फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव नो। फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव मैं केवल मैगजीन्स में मार्क कर रहा था, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मेंस में भी मैंने 2 अटेम्प्ट में बनाए थे, अगले अटेम्प्ट्स में नहीं बनाए। तो आप जुडिशियसली, आपका अगर आपका अटेंशन और आपका मेमोरी आपको सपोर्ट करता है, तो मत बनाइए नोट्स। मगर आप प्लीज़ मार्क करिए। अगर आप एक से ज़्यादा रीड किसी भी चीज़ का दे रहे हैं, तो प्लीज़ मार्क थिंग्स, अंडरलाइन कीजिए, एनसर्कल कीजिए, फिर हाइलाइट कीजिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हाउ टू कंसंट्रेट, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स? The easiest thing is do not rush into giving an attempt. If you are working, know कि आपको दूसरे लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा कम समय मिलेगा। तो आप कृपया तभी अटेम्प्ट दीजिए जब आप थोड़े वेल प्रिपेयर्ड हो। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने के बाद कृपया दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को कम करके इसमें समय रखिए। और इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि थोड़े शॉर्टकट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स ले सकते हैं। हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। सोर्सेस लिमिटेड रखिए, रिवीजन लिमिटेड चीज़ों का कीजिए और जितना हाई प्रोडक्टिविटी समय दे पाते हैं, अगर आप कम समय भी दे रहे हैं मगर आप उसमें प्रोडक्टिविटी हाई रख पा रहे हैं, तो आप समय मैनेज कर पाएँगे। और मुझसे ज़्यादा बेहतर होगा आप अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल टॉपर का वीडियो देखें, वो आपको और भी बढ़िया टिप्स दे सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज? बाय रीडिंग एंड लिसनिंग टू पीपल टॉक इन इंग्लिश। Very simple. Read more, keep a dictionary near you. Every time you are facing a difficult question, yeah, if there is a word that you are coming across uh, more than 3 times or more than 2 times for common words, please check it up on dictionary. Uh, English की practice कीजिए, get it reviewed by somebody else. जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए कितने आवर्स की स्टडी इनफ है? अगर इससे पहले आपने अटेम्प्ट दे चुका है पूरी प्रिपरेशन करके, तो हर रोज 4 घंटे भी इनफ है। अगर उससे ज्यादा है तो आप पूरे पूरे वीक, अगर आपने नहीं किया हो और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो पूरे पूरे वीकेंड्स को डिवोट कीजिए और हर रोज 5 से 6 घंटे अगर आप पुश कर पाते हैं। आई नो इट इज वेरी टफ, बट अगर कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। हिंदी टॉपर को देखिए। What thing did I do after taking classes? On a daily basis, I used to go back and read again what I've studied in the class, and I also, in parallel, used to do my optional and some things from self study for GS that I had decided. Apart from that, I used to on a personal level, I used to work out uh, in a park and or in a gym. तो वो एक मैं करता था, and I used to stay connected with my friends and family. पीएसआर ऑप्शनल में आप आंसर्स कैसे चेक करा सकते हैं? ओनली आईएएस करके एक कोचिंग क्लास है, उन्हीं के साथ काफी सारे दूसरे भी आजकल शुरू हो गए। शुभ्रा रंजन मैम का भी वो एक प्रोग्राम शुरू हो गया है कि आप हर रोज कोई आंसर चेक करवा सकते हैं, कोई बहुत नॉमिनल फी पे, तो यू कैन डू दैट। आई हैव पीएसआईआर ऑप्शनल, कैन आई क्लियर आईएफएस? यू हैव माय एग्जांपल, ऑफ कोर्स यू कैन, बट प्लीज अंडरस्टैंड आईएफएस में PSIR is not an optional in IFS. So you will need to prepare two new optionals again, which is entirely doable within the time provided. क्या आप लबासना में हैं? जी नहीं, मैंने एक्चुअली अभी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था एक और सर्विस अपग्रेड के लिए, तो इसीलिए मैंने लबासना मॉड्यूल स्किप किया है और मैं सीधा दिसंबर से मेरी एकेडमी में ज्वाइन करूंगा देहरादून में।
Should I quit job for preparing UPSC full time? Do it only if you are financially stable. You can do with no income for a couple of years. And if you are familiar with what UPSC is, what UPSC demands, and what you think your potential for UPSC is, please don't do quit the job without knowing about UPSC. Speak to someone who is preparing, speak to toppers, look at toppers' videos, look at the syllabus, look at the kind of format of the papers that come. आपको अगर वो कंफर्टेबल है तो ही आप जॉब छोड़िए। आप एक अगर आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रश्न है, तो आप 1 साल प्रिपरेशन विद जॉब कर सकते हैं, ताकि एक अटेम्प्ट देने के बाद अगर आपको लगे कि शायद आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत है या फिर आपको आप इतना डिवोटेडली इतना समय एग्ज़ॉस्ट हो जा रहे हैं, आप इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जॉब छोड़िए। एंड प्लीज़ डू इट ओनली इफ यू हैव अ गुड बैकअप ऑप्शन। डू नॉट लीव जॉब विदाउट अ क्लियर कट प्लान ऑफ एक्शन। मैंने क्या मिस्टेक्स करे थे जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली मैं इतना प्रीलिम्स से प्री ऑक्यूपाइड था कि मेरा मेंस प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा खराब था। मेरा ऑप्शनल भी 50% हुआ था, मैंने एथिक्स कंप्लीट नहीं किया था, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं किया था जो सिर्फ़ केवल मेंस में पूछा जाता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम थी। तो इसीलिए मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में रहते हैं। यस, सो आई हैव क्लियर्ड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स। अगर कोई डाउट है तो आप कृपया अभी और आपके डाउट्स लिख सकते हैं। मैं आई एम टेकिंग अ मिनट एंड यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। इसके बाद मैं एक दो तीन टिप्स ऑन मेंटल हेल्थ दूंगा, और देन आई डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट फॉरेस्ट सर्विसेज डेडिकेटेडली। I'll take a minute to for the students to write their final notes. How do you do revisions, daily, weekly, or monthly? I did not do revisions in parallel actually, so that is why I used to do revisions monthly. How to make use of test series, as it has many pages. So actually it has many pages, but what you can do is in your first read itself, you should understand that if there is content that is directly lifted from your source, and something that you know decently about, please उसको cancel कीजिए, उसको मत पढ़िए। और उसके बाद आप mark कीजिए only those things that you think that you need to be reminded of again and again while revising। उतनी ही चीजों को पढ़िए। And believe me, even if there are more pages, uh, time spent in revising case studies is extremely useful। सर, क्या आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते थे? यार, मैं ट्राई काफी करता था, मगर जरूरी नहीं कि मैं कर पाता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं करता था, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस ट्राई करता था, और उसके बाद प्लान थोड़ा सा। और अगर मुझे लग रहा है कि मैं समय नहीं मैनेज कर पा रहा, तो मैं कुछ चीजें कट कर देता था जो लो प्रायोरिटी की होती थी। उससे आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई यूज्ड टू स्टिक टू द टाइम। पबॉड ऑप्शनल के कर सकते हैं। हाँ, पबैड इज अ गुड ऑप्शन, देयर आर टॉपर्स आल्सो रिसेंटली फ्रॉम दैट ऑप्शन, एंड इट हैज अ गुड ओवरलैप विथ it has good overlap with uh, ethics essay, somewhat in GS2 as well. So you can definitely consider it, but please speak to someone who's had PubAd as an optional. Look at topper videos before you make that decision, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे PubAd में स्कोरिंग कभी कभी दिक्कत हुई है। तो प्लीज टॉक टू समवन हु हैज मोर नॉलेज अबाउट इट। सोर्सेज फॉर फॉरेस्ट्री एक्सेप्ट मणिकंदन एंड LS खन्ना। Hornbill Forestry notes, Hornbill Forestry videos, a lot of YouTube videos that you can check. Uh, and beyond that, to be honest, it's not necessary, क्योंकि इतने डीप में क्वेश्चंस आते नहीं है। मणिकंदन 80% ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करता है। कीप योर सोर्सेस लिमिटेड। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स? जी हाँ, हमारे साथ भी हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑफिसर्स आर आल्सो ह्यूमंस। वी वर आल्सो जस्ट एस्पायरेंट्स लाइक यू एट दैट टाइम, एंड वी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद वो अभी काफी पॉलिश्ड और फाइनल स्टेज में लगे, बट हमने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। हमने भी प्लान्स चेंज करे हैं। सो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आई एम प्रिपेयरिंग from one last year and done with entire syllabus with revision.
but still not confident in environment, how to first aspire and prepare for that section. एनवायरनमेंट के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो आप ये चेक कीजिए कि आपको नॉलेज इशू है या आपको माइंडसेट इशू है व्हाइल गिविंग फॉर क्वेश्चन। अगर आपको नॉलेज इशू है डिस्पाइट कवरिंग अ पॉपुलर सोर्स, देन यू कैन कंसिडर एडिशनली ऑगमेंटिंग इट विथ ईदर एक ऑनलाइन कोर्स मिलेगा आपको, वो कर सकते हैं, या फिर आप एक सोर्स बढ़ाइए, जैसे पीएमएफ हो गया, या फिर कोई दूसरे कोचिंग क्लास का एनवायरनमेंट का मटेरियल हो गया, वो आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग रखिए, एनवायरनमेंट में काफी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आते हैं। एंड प्लीज डोंट बी फिक्सेटेड पर्टिकुलरली ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है आप थोड़े वीक हो, हर एक एस्पायरेंट का कोई ना कोई ये वीक होता है सब्जेक्ट। डोंट वरी अबाउट इट एज लॉन्ग एज आप ओवरऑल ठीक कर रहे हैं। बट प्लीज सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिए, और किसी भी सब्जेक्ट को के चैप्टर स्किप मत कीजिए। बेस्ट बुक इन माय ओपिनियन शंकर आईएएस के बुक इज द बेस्ट वन। How to make notes for polity? What you can do is, see, there are two types of notes, one for prelims, one for mains. While making notes, what you can do is first read Lakshmikant at least twice before making notes of any type. Then in the second read itself, you should mark important things. While making notes for polity, just write down the things that are exceptions or extremely important things that you would otherwise forget. While making notes for mains, write only those things uh, which are in points. Just very general rule of thumb. Write only those things which are in points, and also only broad things must be remembered. Extreme exceptions or very small details are not necessary for mains notes. That is necessary for prelims. सर हम रिवीजन कितनी बार करें प्लस आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? आंसर राइटिंग जैसे ही आप एक भी सब्जेक्ट अच्छे से कर पाते हैं, वो तब से शुरू कीजिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे तब आपके लिए बेहतर रहेगा। रिवीजन कितनी बार करें? अपार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट बिग रीड जिसमें आप सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर होते हैं, प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले तीन तीन बार रिवीजन जरूरी है, मिनिमम। डू वी नीड टू मेक नोट्स फॉर पॉलिटी? It is recommended that you do, especially for mains. Sir, I am preparing for IFS as I have great interest in forest. How can I correct you for future doubts? Yes, so I'm giving my social media. You on Twitter, you can find me by my name Yash Kale IFS. On Instagram, you can find me by my username. That is, I'll just check before sharing the exact username with you. Yash Kale underscores IFS is on Instagram. So I have added the means through which you can reach out to me. Feel free to ask doubts. Although I would request you to refrain from asking doubts that can be very easily googled. Revision कितने बार किया मैंने? I managed to do it 3 times before pre and before me. How to start your preparation? For starting, you can begin by reading NCERTs. So graduation दिल्ली से करना important है क्या? बिल्कुल नहीं है. Please don't think about that. So yes, I think I've addressed all the major issues. Any other doubts, you can please uh, reach out to me on the handles. I'll just do two more things. One about your mental health. Please ensure that you stay positive and you stay have good mental health. It is extremely important, as important as your physical health. What you should do to keep it healthy? Keep sports as a workout or do any form of exercise. Please continue to pursue your hobbies if you have them. Continue to read things apart from academics. Stay connected with your family. Stay connected with your close friends. um, if there's a problem of FOMO, that fear of missing out, you may avoid using social media, and stay away from toxic people. Very important. If there are relatives, friends who tend to ask you uncomfortable questions, you may please cut them out from your life. Uh, you will be very well off. And if you're worried about them getting offended or them being cut out from your life, believe me, once you are an officer, they will come back to you. uh, Prioritize yourself and prioritize your own mental happiness, and stay connected to your parents. Have healthy conversations with them. There may be times they may not understand uh, what you're going through or what your mindset is before addressing certain issues,
but keep them in the loop. Write letters to them, write long messages to them if you're a little uncomfortable talking to them in person. But there is no bigger support for you in your UPSC journey than your parents. So please stay connected to them and keep them in the loop. Tell them why you are taking more attempts. Tell them why you think you should quit the process if that is the case, or join the process if that is the case. Uh, they may, their uh, their exact prescriptions may not be entirely accurate, but their intentions always are. Yes, and listen to good music. Occasionally watch movies. Once in a week, you can definitely take half a day off, especially in your first year of preparation, and provided you are not 2 to 3 months from the exam. Please take regular offs. Keep buffer time in your timelines, and enjoy what you like. Find out what you like doing and enjoy it. A couple of more questions. Which class NCRT should I read? 11th and 12th should be more than enough. In the meanwhile, I'll just quickly summarize forest services. Forest services, in that you need to, as you must be aware, the prelims is the same, but the mains and interviews are different. In that mains, the most important decision that you have to make is the selection of optionals. If you do not have a technical option, that is any engineering optional beforehand, then I would strongly recommend you to take forestry and geology. Uh, these are good optionals that can be quickly done within 2 months and revised thrice. So that is there. Uh, you don't need to. The most important thing in preparing for forest services is clearing the pre-cutoff. Uh, the pre-cutoff clearing is a little difficult, but repeated revisions, decent number of tests, decent number of attempt of questions. Usually 90 is very necessary for clearing forest cutoff, and a presence of mind is extremely important. And please don't leave any chapter, any topic unturned. Read everything. You don't know what the weightage, subject wise and topic wise, will be for the upcoming prelims. And be prepared for an unexpected prelims. Understand that if it is tough for you, it is tough for everybody. So you are not. Don't be scared or anxious in the paper. Keep a champion mindset. So that would be very important. And yeah, I think that's quite enough. I also have my videos with Delhi Knowledge Track on detailed preparation for Indian Forest Services, and particularly forestry and geology optionals. You may watch them, and if there are any doubts, you can leave them in the comments on those videos or reach out to me on social media. How to stay consistent? Staying consistent is actually very difficult. So you can actually just keep motivation regularly. That is the most easiest way. And ask for external accountability. Ask your parents, ask your friends, girlfriend, boyfriend, or your mentors for taking accountability. They may not understand what you are asking them to do. Just ask them, give them your targets, and ask them to hold you accountable. Whether this week you are going to, say, for example, complete polity and give a test on polity. This much any layman can ask you and take accountability from you. And the easiest way to stay consistent is remember why you got here, why you've taken up this as a career. The moment you constantly remind yourself of your purpose, of your calling, of your passion, and of your ikigai, then you will be able to stay consistent. There will be times when you will not be as consistent as you would have wanted to be, but that's completely fine. Don't be afraid of it. You should understand that everybody has their ups and downs. So even if you are in your downs, as long as you can recover quickly, you should not be worried. Just ensure that you don't have a down period, like of absolutely no studying of more than 2 to 3 days if you have not planned for it beforehand. If that is the case, please talk to your parents, please talk to your friends. If necessary, seek therapy. It's completely normal and healthy to seek therapy. If it is possible financially, please do so. What uh, Due to paucity of time, I will be winding the session up now. Before going, I'll just tell you this. Please remember why you've taken up this service, whether it is to make your dreams of your parents true, or whether you want to like this service, or whether you want to contribute to the nation. All of this should be kept in mind daily, regularly.
to ensure that your consistency, to ensure that your drive and all is high and that you stay motivated. That is the single most piece of advice that I can give you. All the best to you. I understand that a lot of topics were not being able to cover. If you any of you have doubts, please reach out to me on my social media handles. I've shared them. And my name is Yash Kali. You on any social media handle, if you search, you should be able to find my account without much problem. So thank you so much, UPSC Time, for inviting me and giving me this opportunity. UPSC Time is doing a wonderful job in bringing the thoughts of toppers and making them, providing a platform for interaction with the aspirants. It's wonderful. Keep it up. And to my aspirant friends, please, happy studying, stay focused, and make sure you enjoy the journey. All the best. Thank you so much. I'm ending the stream now.